So, I'll start discussing 2014's exam. So just one thing, like maybe next week you might get next week, maybe in few days, you'll get uh, practice papers uh, based on JEE mains, which we want you to practice during your board preparation. So you'll get some next week, and some like a week later. So maybe in all there are 20 papers you will be given that you can have to practice at home. So this I mentioned previously also. It's very important to practice during this time. You cannot spend each and every minute on your board exam, knowing that the importance of board marks in entrance, in admission to engineering colleges is no more there. The weightage is already removed. So you have to spend time, but limited time. Don't spend every moment for the. So generally you can plan that way, that you know just depending upon how much preparation you've already done. तो मे बी हाफ ऑफ इफ 12 आवर्स तो पढ़ना ही है आगे, मतलब इतना कम टाइम रह गया कि, और मुश्किल भी नहीं है क्योंकि एंड देखने लग गया आप तो. So you can work hard during this time. You can have to study 12 hours every day, excluding the time you go to the school and excluding you go for the classes. But otherwise, अगर if you're at home, you have to spend 12 hours. In 12 hours में आप ये कर सकते हैं कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, और जेई की, मतलब मेंस एडवांस whatever together. So maybe 6 hours कि अपने, मतलब you have some preparation already है, some preparation प्री बोर्ड में की है, some preparation already there. अगर no preparation है, बिल्कुल ही छुआ नहीं है, कुछ नहीं ओपन किया, maybe some people, the few students who would go for non-attending school, they might be in this category, no preparation. Maybe 3 here and 9 here, maybe something like this. And then if you have a decent level of preparation, so maybe it should be other way around, 9 here and 3 here. So one who have already prepared for pre-board and performing decent है, तो दिस शुड बी द आइडल वे. और वैसे भी जब मार्च में 9 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे, तो एग्जाम से पहले भी तो सिर्फ वही पढ़ोगे आप. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट यू विल फोकस ऑन द नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम. तो वो टाइम भी मान के चलना, वो टाइम भी आपके पास होगा रिवाइज करने के लिए. So you can see which category you and this is the worst thing you will do is 12 and 0. This is the worst thing you will do. This will spoil your preparation you have done from last so many months. So ये which category you want to put yourself in would based on your board preparation. This is decent level preparation है, तो उस हिसाब से decide कर लेना. And see the 20 papers which we are going to get from VMC to practice during February and January last week in February. So what I'll try to do from my side, maybe I don't know, I'll try with the first session, and then I will see whether it is useful or not. That I'll take a maybe half an hour to 45 minutes class for each paper, or maybe I can combine two papers, and then I'll only discuss those questions which I think there's a concept involved or trick involved, which anyway you're not going to be able to do in exam, which the majority of the people like, or the people who perform average and above average, if so I'll discuss those questions before you attempt them. So at least you have, तो एक रेगुलरिटी आ जाएगी कि आपने अटेम्प्ट करना ही है. बिफोर देयर इज अ नेक्स्ट सेशन यू हैव टू अटेम्प्ट पेपर बिटवीन द टू. So and on just discussing the ideas, the concepts which are tricky in those papers, right? Not the fundamental one. Fundamental one you can practice yourself. So this question, maybe again I have rated this as a fundamental, uh, and it's a difficult to implement. I have done it, but it's again depends on how you take this question. So it's a question based on functions. तो इसमें quadratic भी involved है, functions कम है, quadratic ज़्यादा है, तो maybe I can change it also. So generally, because the people generally, the moment they say greatest integer, they think it's the functions topic. So just a minute. So this quadratic equation is given where greatest integer x, this greatest integer x, and has no integral solution. This equation has no integral solution. Then possible values of a lie in the interval. A की values निकालनी such that equation has no integral solutions. Solutions तो है लेकिन integral solutions नहीं है. So what we do, the moment we see this equation, we can obviously x minus greatest integer x is fractional part of x है, और उसको हम t मान लिया हमने.
So it is minus 3t plus 2t minus ct square plus 2t plus a square equals to 0. ये equation है. I can write this as 3t square minus 2t minus a square equals to 0. Right. अब हमें है कि अब t इसमें क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. So it cannot have integral roots, right? तो इंटीग्रल रूट्स में क्या हो गया, मतलब ये x माइनस इंटीजर x है. इंटीजर x अगर इंटीजर होगा तो ये क्या होगा कि जीरो हो जाएगा. यू कैन क्लियरली सी दैट when x is integer then x and greatest integer x are equal and this is 0. So it means fractional part of x should not be equal to 0 or we can say t not equal to 0. इसके जो रूट्स हैं उसमें t कोई भी रूट 0 t 0 नहीं होना चाहिए, राइट. सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड मोरओवर क्या कंडीशन है कि जो t या t की रेंज क्या है, t lies between 0 and 1 excluding 0. Why? Because t is fractional part of x and fractional part of x cannot go outside 0 and 1. You know the graph of fractional part of x. तो a की वैल्यूज निकालनी है इसमें such that the roots of this equation, that is t, such t root of this equation, t lies between 0 and 1 excluding 0, right? Because ये 0 नहीं हो सकता, fractional part 0 नहीं हो सकता, right? So t not equal to 0 है. तो roots between 0 and 1 होने चाहिए. अब ये तो typical quadratic क्वेश्चन हो गया such that both roots lie between alpha and beta, k1 and k2. Both roots lie between k1 and k2. अगर याद हो आपको कंडीशन की फाइंड द वैल्यूज ऑफ a or whatever is the parameter involved, m, p, whatever it is, such that both roots lie between k1 and k2. हम ये कंडीशन लगाते हैं af k1 greater than 0, af k2 greater than 0, d greater than equals to 0 because roots can be equal, right? And fourth condition is vertex should be between k1 and k2. मैं अब ये सब डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. रिजल्ट है क्वाड्रेटिक का, बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2. ये चारों कंडीशन लगानी पड़ती है तभी केस आता है. तो इफ यू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दीज कंडीशन विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. की वैल्यू आ जाएगी. अब देखते हैं अगर इसमें तो पहली कंडीशन लगाते हैं ए एफ के वन. ये इसमें k1 है, लेसर वैल्यू इज ऑलवेज k1, ग्रेटर वैल्यू इज k2. ए एफ के वन, ए इज 3, राइट. एफ के वन, k1 is 0, 0 replace कर दिया. 3 into minus a square should be greater than 0. This implies a square should be less than 0. ये आ गया. तो right, just a minute. if given all right, minus a square should be greater than 0. तो t equal to 0. oh, एक मिनट. minus a square if I replace एक मिनट. if I k2 देखते हैं अगर 3 minus 2 minus a square should be greater. यहाँ से ठीक आ रहा है. 1 minus a square greater than 0, a square less than 1. अब ये कंडीशन बाद में देखते हैं उसमें कुछ क्या पंगा आ रहा है. सो ए स्क्वायर लेस देन 1 ये कंडीशन आ गई. फिर वर्टेक्स देखा, वर्टेक्स इसका आ रहा है माइनस बी बाई ए माइनस 2 डिवाइड बाई 3 शुड बी बिटवीन 0 एंड 1. ये होना चाहिए. सो 2/3 शुड बी बिटवीन 0 एंड 1. इट इज ऑलवेज करेक्ट. ये तो हमेशा ही करेक्ट हो गया. ये कंडीशन तो ऑलरेडी करेक्ट है. डिस्क्रिमिनेंट देखा 4 माइनस 4 ac 4 into minus a square into 3 should be greater than equal to 0. तो आ गया 4 plus 12a square greater than equal to 0 which is always correct. तो ये तो हमेशा ही करेक्ट है, ये हमेशा करेक्ट है. तो यहाँ से जो कंडीशन हमारी आ रही है वो 0 वाला कुछ गड़बड़ कर. अभी देखते हैं क्या पंगा है, उसके बाद में देख लेंगे. a square less than 1 है तो a belongs to, a square less than means a belongs to -1 to 1. क्या आ गया आंसर? a belongs to -1 to 1. लेकिन इसमें मतलब ऐसे करके a square -1 less than 0 क्वाड्रेटिक फिर फैक्टराइज करके कर लिया. इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी लास्ट में कि ये बिलोंग्स टू -1 to 1. अब एक इसमें 0 को हटाना है इसके अंदर. वैसे भी आंसर से दिख रहा है कि ये आंसर होगा, 0 है ही नहीं, बट a equal to 0 इज नॉट पॉसिबल.
वाई? बिकॉज व्हेन यू रिप्लेस टी इक्वल टू जीरो डाल देंगे तो टी इक्वल टू जीरो आ रहा है, और टी इक्वल टू जीरो तुमने पहले ही कहा था नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है कि टी इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, वो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वो जीरो का मतलब इंटीजर रूट हो गए। तो ए इक्वल टू जीरो पे टी इक्वल टू जीरो आ रहा है, फिर रिप्लेस ए इक्वल टू जीरो, यू कैन सी टी इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो ये आंसर आ गया। यहाँ से क्या कुछ गड़बड़ हुई है एक बार आप देख लेना, ए इंटू एफ जीरो, नेगेटिव, इसको नेगेटिव नहीं आना चाहिए कुछ, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एक बार देख लेना इसमें आप। So this is a question based on again I've marked this question as fundamentally easy. So the reason being is in the last question you can also do like this. I forgot to mention that you can find you know कि रूट जीरो टू वन के बीच में होना चाहिए, रूट्स निकाल ही लिया आपने और जीरो वन के बीच में कर दिया। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, इस तरह से नहीं, कंडीशन नहीं लगानी। तो टी रूट क्या है यहाँ पे कि टू प्लस माइनस रूट ऑफ फोर प्लस 12a स्क्वायर डिवाइड बाय 6 शुड बी बिटवीन 0 and 1। तो दो इक्वलिटी बना के भी ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। So this is, the question is based on DC1 because you just take derivative. But I have marked this question as fundamental because similar question is there in the module. तो पहले नहीं किया तो उससे प्रॉब्लम आ जाए। So G is inverse of fx. So Gx is f inverse of x. तो जब भी आपकी ये क्वेश्चन बनती है, one function is inverse of another function, what we do, and we have to take derivative. So what we do when you take derivative, we write this as दोनों साइड का f ले लिया, f of gx इक्वल टू x, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, राइट? मतलब कंपोजिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों साइड का f ले लिया, f इनवर्स f से x हो जाएगा, ये कंडीशन है। इनवर्स फंक्शन से हम ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ा, सेम ही है, इनवर्स का इनवर्स को फंक्शन लेंगे तो x बन जाएगा ऐसे। सो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस, चेन रूल f डैश, f का डेरिवेटिव लिया, gx को कांस्टेंट रख के फिक्स करके इसको, और फिर gx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 1। एंड देन हमें क्या करना है कि इसमें जी डैश एक्स निकालना है। सो जी डैश एक्स लेफ्ट पे रख के बाकी उसको राइट पे भेज दिया, वन ओवर एफ डैश एक्स जी एक्स। अब ये तो हो गया, समझो आप, वाई? बिकॉज एफ डैश जी एक्स है, तो एफ डैश, हमें एफ डैश एक्स पता है, वन ओवर वन प्लस एक्स टू द पावर 5 है, वन बाय एफ डैश एक्स क्या होगा, वो होगा वन प्लस एक्स टू द पावर 5। हमें एक्स की जगह रिप्लेस करना है, अब जी एक्स, जी रिप्लेस कर दिया, एफ डैश जी एक्स इज वन प्लस जी एक्स टू द पावर 5। ये आंसर हो गया, वन प्लस जी एक्स टू द पावर 5। So again, this is for me, writing it like this and differentiating is a very fundamental thing. अब आपने नहीं पहले किया तो just remember, this thing is inverse function आ रहा है तो इस तरह से हम उसको लिख के differentiate करते हैं। Now this is a in limits question, और last two classes से देखा ये limit के ऐसे fundamental question आ रहे हैं। यहाँ पे LH rules लगा के सीधा सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इज 2x, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में साइन का डेरिवेटिव cos, टेकिंग पाई cos स्क्वायर x कांस्टेंट फिक्स, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई टाइम्स cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin 2x। और इसके बाद देखा sin 2x बाय 2x तो 1 हो गई, फॉर्मूला टेम्पलेट है, sin 2x बाय 2x अप्रोचेस 1 है, ये अप्रोचेस x अप्रोचेस 0 पे cos 0 इस 1 को अप्रोच कर रहा है, cos पाई माइनस 1 को, ये माइनस 1 को अप्रोच करेगा, ये पाई है, और ये 1 को अप्रोच कर रहा है, sin 2x बाय 2x, ये है। सो आंसर इज माइनस माइनस, ये माइनस 1 को अप्रोच कर रहा है, एक माइनस ये भी था, यहाँ भी माइनस था एक, तो आंसर इज पाई। यहाँ से पाई आ गया, लेट्स लगा के, या फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको। इस बार ये मत कर देना, कई लोग ये गलती कर देते हैं कि यहाँ साइन पाई स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स है, आप कहते हैं पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये लिमिट 1 हो गई, साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, नो ये 1 नहीं है, ये टेम्पलेट जो हमारी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एफ एक्स ओवर एफ एक्स, ये जो 1 होता है कब, व्हेन as x approaches 0 fx should also approach to 0, fx 0 को अप्रोच करना चाहिए, s approaches 0 पे, तो 0 को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे as x approaches 0 पे अगर आप देखेंगे, x approaches 0 पे ये पाई को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये पाई को अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं होगी, गलती मत करना है वाली। तो हमें ये ऐसे ये नहीं कर सकते हम। हाँ, अगर आपने ऐसे फॉर्मूले से करना है, एलिजिबल नहीं यूज करना, तो पहले आपको ये स्टेप लिखना पड़ता है इसमें, और आई थिंक मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है ये,
पाई कॉस स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। देन यू कैन अप्लाई द टेम्परेट। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे देखो साइन फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये पार्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब आप कर सकते हैं कि पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी कर दिया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप कह सकते हैं ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, आंसर पाई आ गया। So this is a similar kind of question we solved, I think, in last class. We have this fx function and we x equals to -1 and 2 are the extreme points. तो हमें सिर्फ ये करना है f dash -1 equal to 0 एंड किया था हमने उस क्वेश्चन में f dash 2 equal to 0, ये करना है। वहां से दो इक्वेशन आएंगे, अल्फा बीटा में सॉल्व कर लेंगे। अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये भी बताया था फॉर्मूला, वो भी यहाँ यूज कर रहे हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एफ एक्स क्या होता है? अगर मॉड है तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये याद रखना है अपने फॉर्मूला, राइट। तो हमने इसका फंक्शन गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हमें ये गिवन है, फंक्शन गिवन है और ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, -1 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम है ये। तो डेरिवेटिव जीरो करना है दोनों पे। एफ डैश एक्स लिया, इसका डेरिवेटिव अल्फा, और लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय मॉड एक्स, चेन रूल, फिर मॉड एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? मॉड एक्स बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1। ये फॉर्मूला लगाया मैंने मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यों चेन रूल लगाने के लिए पहले log mod x का डेरिवेटिव था, 1 बाय mod x आ गया, फिर mod x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर 2 बीटा x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 एंड देन ये इससे कैंसिल हो गया। अल्फा बाय x से एलसीएम लिया, मैं लिख लेते हैं पहले, अल्फा बाय x प्लस 2 बीटा x प्लस 1, इफ आई टेक एलसीएम 2 बीटा x स्क्वायर प्लस x प्लस अल्फा, ये। नाउ वी रिप्लेस माइनस f dash -1 equal to 0, f dash -1 is if I replace -1 2 beta -1 plus alpha equal to 0 and f dash 2 equal to 0. F dash 2 is 4 beta plus 8 beta, sorry, मिस्टेक करेंगे तो मुश्किल होगी। फिर 8 बीटा प्लस 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट, सेपरेट कर दिया, 6 बीटा equals to 3, beta equals to half, and if I replace beta half here, अल्फा 0 तो नहीं आता, बीटा माइनस हाफ है। जब यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये देखो बीटा माइनस हाफ आ रहा है, सेपरेट के 6 बीटा प्लस 3 आ रहा है, या बीटा माइनस हाफ रिप्लेस करेंगे तो अल्फा 2। तो टाइम ही नहीं लग रहा सॉल्व करने में। तो ऐसे क्वेश्चन में सोचना नहीं है आपने, सीधा मतलब, हाँ अगर कॉन्सेप्ट सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन में तभी तो स्पीड स्लो होगी, अगर रेडीमेड कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस के। So this one is I have marked as a tricky question because based on Rolle's theorem. अब क्वेश्चन पहले ऐसे किए तो होंगे लेकिन अब एकदम रिवाइज नहीं रहता है तो आप कर नहीं पाएंगे। इसमें ये कंडीशंस गिवन है, इसमें f0 गिवन है हमें 2 है, साथ में g0 गिवन है 0 है, और हमें gv2 भी f2 भी गिवन है और g2 भी गिवन है, नहीं सॉरी 1, f1 गिवन है हमें 6 और g1 गिवन है हमें 2, ये सारी चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा कि रोल्स थ्योरम या एलएमवीटी होता है। तो रोज किसी फॉर सम वैल्यू ऑफ c बिटवीन 0 एंड 1, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं सेटिस्फाइंग दीज वैल्यूज, देन फॉर सम वैल्यू ऑफ c कोई सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे कंडीशन ट्रू है, कोई सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे कंडीशन ट्रू है कि उसका डेरिवेटिव का एक रूट होगा इस 0 और c के बीच में। तो इसमें अब अगर आपने पहले इस तरह से हम करते हैं, एच एक्स फंक्शन बनाते हैं कि जैसे ये पहली चॉइस देखो, अगर पहली चॉइस अगर 2 तब होगी जब वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन दिस काइंड ऑफ फंक्शन 2f(f(x) -3gx। अगर यहाँ पे रोल्स थ्योरम लग गया तो इसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा बिटवीन 0 एंड 1, तो ये चॉइस ट्रू हो जाएगी अगर इस पे हम अगर रोल्स थ्योरम लगा पाए। ऐसे ही एच एक्स दूसरा चॉइस मैंने देखा यहाँ पे मेरा f(x) -gx, अगर इस पे रोल्स थ्योरम लगा पाएंगे तो ये चॉइस करेक्ट होगी सेकंड वाली। और थर्ड है एच एक्स इक्वल टू, ये थर्ड चॉइस देखेंगे तो है f(x) -2gx। तो अब ये तीनों पे ट्राई करना पड़ेगा कहाँ पे सेट रोल्स थ्योरम लग पाती है। तो उसमें रोल्स थ्योरम का क्या फंडा होता है कि रोल्स के अगर एच फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है, जो कि है बिकॉज एफ एंड जी है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, सो एच इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, तब ये होना चाहिए फिर एच और फिर एच ए इक्वल टू एच बी हो जाए, एच ए इक्वल टू एच बी हो गया, देन देयर एग्जिस्ट वन रूट ऑफ ये कि एच डैश सी 0 होगा फॉर सी बिलोंग्स टू 0 to 1, ए टू बी।
जनरल बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव जीरो होगा एक पॉइंट पे बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे और दोनों पे वैल्यूज सेम है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिटवीन ए एंड बी वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। ये रूल्स थ्योरम है कि बिकॉज ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, तो बीच में ऐसे भी जा सकता है, ऐसे घूम फिर के भी जा सकता है, तो एटलीस्ट एक एक जगह डेरिवेटिव जीरो तो होगा ही, डेरिवेटिव का एक रूट तो होगा ही बिटवीन ए एंड बी। तो वो हमें देखना है कि बस अब ये चेक करना है तीन चॉइस में से किस में ऐसा हो रहा है कि एच जीरो इक्वल टू एच वन है, ये कंडीशन चेक करनी है। जहां भी कंडीशन ट्रू होगी तो रोल थ्योरम लगा दी इसके ऊपर। तो अब देखो एच जीरो क्या वैल्यू आ रही है, हमें पता है जीरो क्या है, पहले ये फंक्शन लेते हैं ये वाला, तो टू इंटू एफ जीरो इज टू, माइनस थ्री इंटू जी जीरो इज जीरो, तो फोर आ गया। ऐसे ही एच वन निकालना है हम, इसमें एच वन आ गया टू इंटू एफ वन, टू इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू जी वन इज टू, तो ये सिक्स आ रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, राइट गलत हो गया, ये चॉइस नहीं है। इसमें ये चॉइस बनती है थर्ड वाली, इसको कैसे देखो, एच जीरो क्या आएगा थर्ड चॉइस से, एफ एक्स एच जीरो इज एफ जीरो इज टू माइनस टू टाइम्स जी जीरो इज ऑल्सो जी जीरो इज जीरो, तो ये टू आ गया। ऐसे एच वन देखा हमने, एच वन है एफ वन इज सिक्स माइनस टू टाइम्स जी वन इज टू, ये टू आ गया, दोनों इक्वल है। यस, तो इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम लग सकती है बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और रोल्स थ्योरम क्या कहती है, इसके डेरिवेटिव का एक रूट होना चाहिए, तो मतलब एफ डैश सी माइनस टू जी डैश सी शुड बी जीरो फॉर वन वैल्यू ऑफ सी बिटवीन जीरो एंड वन, तो ये चॉइस करेक्ट हो गई। तो मैंने ट्रिकी ट्रिकी लिखा है कि आपने इस तरह से पहले नहीं किया, कि इसमें अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि अब फंक्शन कौन सी चॉइस मैच कर रही है, आपको तीनों पे लगा के देखना पड़ेगा ऐसे, और ये सिंगल चॉइस करेक्ट है, एक से भी मैच करेगा तो आंसर, तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, इसको मैंने फिर मार्क किया है इसमें, क्योंकि ये अगर आपने पहले इस तरह से नहीं क्वेश्चन किया तो थोड़ा ये मतलब यहाँ मैं लिख लिया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अगर अगेन सेम पहले किया इस तरह क्वेश्चन, इसका पैटर्न ये है, तो इसमें बाई इंस्पेक्शन करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो इसका x प्लस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको t डालते हैं, जनरली इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट है पावर में, इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर d बाई डी एक्स, तो आ रहा है वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इफ आई टेक एलसीएम इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स। लेकिन यहाँ तो कुछ और भी है, यहाँ पे अगर ये देखेंगे हमें, ये क्या है, ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स है, ये ऐसे है, तो हम करते यही हैं, अब कि हम इसको ना इस प्लस साइन के अबाउट स्प्लिट करते हैं, इस प्लस साइन के स्प्लिट करा, दो पार्ट कर दिए, ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स, dx अलग कर दिया जो कि इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है मेरा ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स है, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये ऐसे लिख लिया मैंने इसको। और अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसको मैं सेकंड पार्ट मान के, क्योंकि इंटीग्रेबल है, इसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया, इंटीग्रेबल है, इसको फर्स्ट पार्ट मान के बाय पार्ट अप्लाई कर दिया मैंने, बाय पार्ट्स क्या किया, पहले तो मैंने इस प्लस साइन के अबाउट स्प्लिट कर लिया, क्योंकि प्लस साइन डेरिवेटिव में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये पार्ट कर रहा है डेरिवेटिव में कंट्रीब्यूट, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है लेकिन आसपास है, एक्स का फर्क है, बना लेंगे। अलग करने के बाद इसको मैंने भी छोड़ दिया, कैंसिल हो जाता है ये, इस पे बाय पार्ट्स लगाया, उससे पहले मैंने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनाए बगैर हम सेकंड पार्ट को इंटीग्रेबल बनाए बगैर हम डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स लगा ही नहीं सकते। अब इसका डेरिवेटिव बन गया तो ये इंटीग्रेबल है, इसको फर्स्ट पार्ट एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, इसका जो इंटीग्रल डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अगर आप देखें ध्यान से, राइट, ये है, ये बेसिकली ऐसे ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये है, तो क्या होगा एफ एक्स को टी मान के, मतलब कैसे, जैसे लिख के कर लो, एफ एक्स को टी मानोगे तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर टी डी टी बन जाएगा, आंसर इज ई टू द पावर टी, बेसिकली आंसर इज यहाँ ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स है, ये आ गया, इसका इंटीग्रल ये आ गया, उल्टा देख लो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है चेन रूल से, दिस इंटू मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये, और एक्स का डेरिवेटिव वन, अब ये पूरा इस इंटीग्रल से कैंसिल हो गया जो हमने अलग किया था शुरू में, इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे x इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस विच इज ई टू द पावर x प्लस वन बाय एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो अब ये इसमें बाई सबमिट बाय मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप लगाया फिर बाद में बाय पार्ट्स लगाया कि इस प्लस साइन के अबाउट स्प्लिट करना दो पार्ट में, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, राइट,
और फिर यहाँ पे हमने डेरिवेटिव बना के बाय पार्ट्स लगा दिया। अगर आप देखेंगे ना इस तरह की, अगर आपने पहले इस तरह से पढ़ा हुआ है, उससे क्लास में आपको पढ़ाया है वो, ये इस जैसे आपने ये इंटीग्रल देखा है स्पेशल इंटीग्रल, उसी उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ये, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये स्पेशल इंटीग्रल है, राइट। उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अगर ई की पावर में अगर यहाँ पे जी एक्स है तो क्या होगा, अगर ई की पावर में जी एक्स है तो एफ एक्स नहीं है, जी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, एफ एक्स के साथ हमें क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये एक और टेम्पलेट की तरह याद कर लो कि ये अगर है तो आंसर आएगा इस बार एफ एक्स या इंटू ई टू द पावर जी एक्स प्लस सी। तो इसी टेम्पलेट पे क्वेश्चन बना हुआ है, और जितने मर्जी क्वेश्चन बना सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स को डाल के यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं कैसे टेम्पलेट पहले आ रहा है, इनसे चेक कर लेते हैं कि इसके दो पार्ट किए मैंने। पहला एक तो करा मैंने इसका ई टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, इसको ऐसे ही रखा, प्लस सॉरी इसको सेकंड पार्ट को ऐसे ही रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसे बाय पार्ट्स लगा दिया, टेकिंग दिस एज फर्स्ट पार्ट, दिस एज सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट इंटीग्रेबल अभी देखा था हमने ये, इसको फर्स्ट पार्ट लिया एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट इज एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रल अभी देखा हमने, ई टू द पावर जी एक्स बनता है इसका इंटीग्रल, इसको टी मान के, जी एक्स को टी मान के ये डी टी बन जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा, ई टू द पावर टी का इंटीग्रल ई टू द पावर टी सेम होता है, ये आ गया, और ये से पूरा कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ से आ गया एफ एक्स इंटू ई टू द पावर जी एक्स प्लस सी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इस टेम्पलेट पे ही बने हुए हैं, तो ये टेम्पलेट ही आप पूरी याद कर लो, राइट। ये जो टेम्पलेट है, तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं टेम्पलेट थोड़ा दिमाग में बिठानी पड़ेगी आपको, तो फिर एकदम, तो वापस से इस क्वेश्चन पे आए, अगर हम यहाँ कर लेते हैं, तो हमने देखा अच्छा ये तो मेरा ई टू द पावर जी एक्स है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो एक जगह जी डैश एक्स, सॉरी ये जी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स चाहिए मुझे, यहाँ मैंने बना लिया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स तो है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये मुझे जी डैश एक्स मिल गया था यहीं पे, राइट। तो ये मेरा फिर इसका मतलब एफ एक्स हो गया, तो यहाँ एफ डैश एक्स चाहिए मुझे, वो वन है ना, बिल्कुल टेम्पलेट बनी रही है, ई टू द पावर जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, पूरा बने वो सेट है, तो आंसर क्या होगा, एफ एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर जी एक्स प्लस सी। सीधा आंसर आ गया एक स्टेप में, अगर टेम्पलेट आपको आपने याद किया अभी तो। So this is a question based on area, you know, this x square plus y square less than equals to 1 बुक हमेशा तीनों साल से इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल के बीच का एरिया हो गया, और ये पैराबोला जो है वो है y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेके x माइनस वन, तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इक्वल टू बना साइन बना लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ x, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x बना के रिप्लेस x बाय x माइनस वन, शिफ्टिंग वन यूनिट टुवर्ड्स राइट, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x बनाया, शिफ्टिंग वन यूनिट राइट, ये पैराबोला आ गया, और इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, x इक्वल टू जीरो पे y प्लस माइनस वन आ रहा है, सो दिस इज पैराबोला, ये है वन, और हमने इसको वन यूनिट से शिफ्ट किया, यहीं से पास कर रहा है, ये पैराबोला ऐसे है ये। तो अब पैराबोला की कौन सी साइड लेनी है, पॉइंट रिप्लेस, ऑरिजिन रिप्लेस करके देख लो, पैराबोला में सेटिस्फाई कर रहा है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑरिजिन साइड ऑफ दिस ये आ गया, दिस इज द एरिया वी आर सपोज टू फाइंड, दिस एरिया इनसाइड द सर्कल एंड ऑन कॉनकेव साइड ऑफ द पैराबोला, दिस इज द एरिया। तो अब इसको तो आप कई तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप दिस कर्व, अगर जैसे ही पढ़ा है आपने, ये कर्व लेफ्ट कर्व है और ये राइट कर्व है, तो यू नो राइट माइनस लेफ्ट, फ्रॉम माइनस वन टू वन, राइट का माइनस लेफ्ट कर्व, राइट का पैराबोला है यू नो वन माइनस वाई स्क्वायर, या में से माइनस करना है आपने
ये सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की इक्वेशन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए, और लेफ्ट सेमी सर्कल है तो ये इक्वेशन है इसकी, ये गलती मत कर देना, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर है, क्योंकि लेफ्ट सेमी सर्कल है ये जनरली यही पैटर्न होता है। अगर ये राइट सेमी सर्कल है तो डेफिनेशन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होती है एक्स ऑफ root of 1 minus y square, because x is positive here. But if it is left semicircle, it is x equal to minus root of 1 minus y square. Negative आएगा because x is negative here. तो minus root of 1 minus y square dy. और y में क्यों लिया, क्योंकि हम राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, एरिया को y एक्सिस से मैप कर रहे हैं इसलिए। तो ये आप फिर आप इंटीग्रेट कर लेना, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है ये। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं है तो आप ये पहले आप ये कर लो कि ये एरिया तो सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर पाई वन स्क्वायर का टू सेमी सर्कल का एरिया आ गया, और ये जो एरिया निकालना है इसमें ये एरिया निकाल के टू टाइम्स कर दिया, बिकॉज सिमेट्री पैराबोला एक्सिस के एरिया निकाल के टू टाइम्स कर दिया, टू टाइम्स 0 to 1 पैराबोला है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये कर लो, इससे भी सेम आंसर आएगा। थोड़ा इजी पड़ रहा है करना इससे, यहाँ पे क्योंकि फिर इसको इंटीग्रेट करना बेवकूफ़ी है, सेमी सर्कल थी ये तो, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा, तो बेटर है इस तरह से ही कर लिया उसमें, ये जो फॉर्मूला लगाओगे x/2 साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो, इससे बेटर है ये आ गया। और इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी है कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंटिकल DC2 IC2। तो ये अब देखो, इसमें भी कई लोगों से था प्रैक्टिस नहीं किया तो अटक जाए कि कैसे ट्रिक करते हैं इसमें, तो इसको ये अब कहना कि स्टेट ऑफ माइंड कितना खराब होगा कि पता नहीं चल रहा आपको, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर अगर देखो किसका, 2 साइन x/2 माइनस 1 का, राइट, जो कि ये 4 साइन स्क्वायर x/2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab है ये, और ये साथ में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, तो ये भी अगर नहीं पता तो बहुत गलत बात है ये तो, मॉड आ जाएगा, स्क्वायर रूट और ये कैंसिल करेंगे तो मॉड आता है, हमेशा मॉड है। तो ये कंपाउंड फंक्शन का इंटीग्रल है, और कंपाउंड फंक्शन इंटीग्रल में आप मॉड हटाने के लिए पहले देखना पड़ता है कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, 2 साइन x/2 माइनस 1। तो ग्राफ देखें इसका, साइन एक्स पीरियड क्या होगा इसका, 2 पाई/हाफ होगा पीरियड, साइन का पीरियड 4 पाई है, तो ग्राफ आईडी लेने के लिए ग्राफ इसका पीरियड 4 पाई है, तो ये 4 पाई हो गया, ये 2 वैल्यू होगी पॉजिटिव पीक। अब इसको ये मैंने इसका ग्राफ बनाया पहले, तो फिर उसको 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करना है, 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करने का मतलब है एक्स एक्सिस को ऊपर मूव कर दिया, ये ग्राफ है, ये ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये छोड़ दिए अब। तो मुझे दिख रहा है कि जीरो से लेके इस पॉइंट तक तो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, और यहाँ से लेके ये मेरा पाई था, ये 2 पाई था ना, इसे मतलब यहाँ हो जाएगा, ये 2 पाई है, पाई था पहले अब तो नहीं है, तो मतलब नीचे हाँ ये तो पाई रहेगा सेम, तो ये है। तो अब ये देखना है कि यहाँ ये किस पॉइंट पे चेंज हुआ है, यहाँ पे जीरो है, जहाँ 2 साइन x/2 माइनस 1 जीरो है, वहां पे ये पॉइंट निकालना है हमें कि उसके पहले नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, साइन x/2 इक्वल्स टू हाफ, सो पाई/3 x/2 इक्वल्स टू पाई/3 इक्वल टू जीरो किया हमने। हम्म तो 2 पाई/x आ गया 2 पाई/3, और एक वैल्यू सिमेट्री से ये भी आएगी, पाई/3 भी आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, 2 पाई/3 तो मैं चाहिए नहीं, बिकॉज 2 पाई/3 भी कहाँ तक करना, जीरो से लेके एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमें देखना है कहाँ ये ओ सॉरी, हाँ या कहीं कहाँ ये 1 से ज्यादा है, और हाँ तो उसका ग्राफ ही बना लिया ना पूरा, हमने ये ग्राफ बना लिया। तो हमें अभी देखना है कि पूरा ग्राफ आने के बाद मॉड है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है और यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये 2 पाई/3 है, या तो यहाँ से आ गया जीरो से लेके 2 पाई/3 तक तो नेगेटिव है, तो आएगा 1 माइनस, माइनस 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 लगा दिया इसके आगे, मॉड को माइनस, नेगेटिव है ना ये पार्ट, नेगेटिव है तो माइनस लगा के करना है, और 2 पाई/3 2 पाई 2 साइन x/2 माइनस 1 dx है, ये फिर ये आपको इंटीग्रेट करने हैं दोनों।
right? So this is a question based on DC2. Very fundamental easy question. Oh, so differential equation, not DC2. Differential equation. And let the population of rabbits surviving at the time t be governed by the differential equation. अब ये linear differential equation है. Solve कर linear differential equation को, ये तो लास्ट 2-3 बार से कर ही रही है linear differential equation. ये linear differential equation ये आ रही है, आपने देखा तीनों बार. तो it is dp by dt minus half p equals to minus 200 है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e to the power integral of minus half dx. तो आगे e to the power minus x by 2 है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी. फॉर्मूला अप्लाई की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने. y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस सी. ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का याद किया हुआ है. तो ये तो आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें. तो सो बस ये है -200. इसका इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस सी. तो हाफ को ऊपर भेजेंगे तो 400 e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू से डिवाइड भी कर दिया. सो 400 प्लस सी टाइम्स e टू द पावर x बाई टू. ये आ गया, डिवाइड करा है तो ये न्यूमरेटर में चला गया. अब कांस्टेंट निकालने के लिए गिवन है p0 इक्वल टू 100 गिवन है. ये 100, 400 और ये 0. सो c3 माइनस 300 आ गया. c 400 माइनस 300 e टू द पावर x बाई टू. तो स्पीड भी आपने देखना है कि प्रैक्टिस अब लास्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे एडवांटेज होगा. जो कॉन्सेप्ट पता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको एज सून एज पॉसिबल, इससे भी जल्दी कर सकते हो तो बेटर है. Now this is a question based on straight line और coordinate पे आ गए हैं. And this is easy question हो नहीं सकता कोई. मेरे को C के triangle given है. What is this? This is P is 2,2. This is 6, -1 and this is 7,3. निकालना equation of the line passing through 1, -1 is point. Equation line passing through 1, -1 and parallel to passing through 1, -1 and parallel to PS. क्या? Let PS be the median of the triangle. ये median है. PS median है. तो ये पॉइंट तो ऐसे निकाल लिया आपने. 13/2 ऐड किया 1 आ गया, राइट. तो ये जो S है और ये P है, तो मैं इस लाइन का स्लोप आ गया और इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन चाहिए विद पैरेलल टू PS. तो PS का स्लोप चाहिए सर, 2.4 में स्लोप निकाल लिया, S निकाल लिया मिड पॉइंट से, PS का स्लोप आ गया, पॉइंट है. तो y + 1 इक्वल टू स्लोप आ गया 2 - 1 1 और 2 - 13/2 इंटू x - 1. ये क्वेश्चन आ गई, राइट. 4 लिया, 2 पर गया, ये -9 -9y -9. अगर मिस्टेक होगी तो अलग बात है. 2x - 2. सो इट इज 2x + 9y equals to -7. 2x + 9y. वन चॉइस. तो यू कैन सी 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन था. स्लोप निकाल लिया मीडियन से और फिर लाइन की इक्वेशन लिख ली. अब ये क्वेश्चन भी फंडामेंटल इजी है. लेट ABCD be the non-zeros हैं. If point of intersection of these two lines, ये लाइन गिवन है 4AX, I'm writing it here, 4AX + 2AY, क्या आपको दिख जाए. इसमें A और C इन्वॉल्व है. दूसरी लाइन है 5BX, इसमें A है इसमें B है और C और D यहाँ पे ऐसे है. मतलब A और C की फॉर्म में है, ये B और D की फॉर्म में है. इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. यहाँ लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अब उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस फॉर्म का होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, साथ में क्या गिवन है, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू एक्सेस. ये इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से. अगर ये मैं कह रहा हूँ T है तो ये भी T है, लेकिन डिस्टेंस बराबर है, लेकिन साइन का फर्क होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा, कि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के होंगे इस फॉर्म के होंगे T, -T. क्योंकि लेंथ इक्वल है तो वैल्यू तो बराबर होगी, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा. सो T, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लिया T, -T और रिप्लेस कर दिया दोनों के अंदर. तो ऊपर वाली क्वेश्चन से आ गया 4AT + 2AT, सॉरी -T है, -2AT + C = 0, दैट इज 6AT + C = 0. तो 2AT + 2 आएगा. यहाँ पे आ रहा है 5BT - 2BT, y को -T
प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है 3bt प्लस डी इक्वल टू 0। तो टी को एलिमिनेट करना है, तो इसको 2a से और इसको 3b से और इसको 2a से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिए, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3bc माइनस 2ad इक्वल टू 0। ये सेकंड चॉइस आ गई। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस का फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन था, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है और साथ में गिवन था ये पॉइंट को एक तो साइन अपोजिट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साथ में वैल्यूज भी एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है दोनों एक्सिस से। तो कोऑर्डिनेट्स टी को माइनस टी है या एक्स इक्वल टू माइनस वाई समझ लो, लेकिन टी इक्वल टू माइनस टी दोनों में रिप्लेस करके एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल्स है और ये इस पे कंडीशन पहले भी क्वेश्चन आया था, सेम उस तरह क्वेश्चन है। पहले हमने किया था C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। मैंने कौन से भी समझाया था आपको ब्रीफली, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली राइट देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, सर्कल लेट सी बी द सर्कल उस सेंटर इज 1,1 और रेडियस भी 1 है उसका, ये है। इफ टी बी द सर्कल सेंटर्ड एट 0,y, दूसरा सर्कल है जो 0,y पे सेंटर्ड है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कोई कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बना रहा हूँ। पासिंग थ्रू ऑरिजिन है एंड टच द सर्कल एक्सटर्नली। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अभी देखो एक सर्कल जो ऑरिजिन से पास करता है और सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये चीज आप मिस कर सकते हो उस क्वेश्चन में। तो हो सकता है ये ट्रिकी इजी हो जाए कई लोगों के लिए कि सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो सर्कल ऐसे होगा, टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन होगा। तो उसका रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, उसका रेडियस भी वाई है, रेडियस मॉड वाई है इसके अंदर, राइट। पहला क्वेश्चन किया था वो भी इस तरह का ही था सेम, मॉड वाई है, रेडियस मॉड वाई आ गया इसमें क्योंकि सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को। जो सर्कल सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास का ऑरिजिन पे टच ही करेगा। अगर सेंटर यहाँ लाई कर रहा है तो ऑरिजिन से पास क्या करेगा, वो टच ही करता है, देखो ऑरिजिन को लाइक सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो ये सर्कल आते हैं सारे। तो एक तो इस सर्कल का रेडियस भी मॉड वाई हो गया। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी है, कंडीशन टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हो गया वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई मॉड वाई प्लस 1। ये आ गई कंडीशन, स्क्वायर कर लिया। वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मॉड वाई। इसको भी ओपन किया, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मॉड वाई। वाई स्क्वायर प्लस 1 विल कैंसिल वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा। y ग्रेटर देन 0 लेते हैं, y लेस देन 0 में तो कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि y ग्रेटर देन 0 लेंगे तभी आएगा। 4y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/4 आ गया। y को नेगेटिव लेंगे तो ये तो मॉड वाई माइनस वाई, तो फिर कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, नॉट पॉसिबल। तो आ रहा है माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2y, नॉट पॉसिबल। तो y ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। मोस्टली देखिए इसमें अगर आप ड्रॉ कर, कई बार आप ड्रॉ करने में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने तो ड्रॉ करा ही नहीं है सर। दो सर्कल आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे कंडीशन लगानी है टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक का सेंटर रेडियस देख लिया, अगले का सेंटर तो गिवन था, रेडियस देखने के लिए निकाला हमने मॉड वाई होगा क्योंकि ये गिवन था, ये वाई एक्सेस ओरिजिन से पास कर रहा है। सर्कल जो जिसका सेंटर वाई एक्सेस पे है, अभी समझाया मैंने आपको, ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका रेडियस मॉड वाई हो गया, रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कई बार ड्रॉ करने में होता है कंफ्यूजन हो जाए आपको, ड्रॉ जैसे एक सर्कल तो है जिसका सेंटर 1,1 और रेडियस 1, तो टच कर रहा है दोनों को, ये सर्कल है। अब दूसरा सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, वो ऐसे होगा, यहाँ देखो ऐसे नीचे होगा कहीं वो, ये रेडियस 1/4, इसका रेडियस 1 है, उसका रेडियस 1/4 आ रहा है ना, ऐसे है वो सर्कल ये। तो वाई नेगेटिव तो वैसे ही पॉसिबल आंसर नहीं, पॉसिबल नहीं था। इस सर्कल को टच करना है तो वाई नेगेटिव कैसे हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कैसे, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कैसे हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ऊपर ही होगा, वो तो भी आंसर में रिजेक्ट ही कर दिया हमने। तो ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से फिगर आएगी, पर ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर हमने यहाँ कंडीशन लगाई है, ये C1 C2 इक्वल टू सम ऑफ, तो ये यहाँ से समझ आ रहा है मेरा कि यही जो रेडियस वही है जो मोड बाई है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था इसमें। तो इलिप्स का क्वेश्चन है, लोकस ऑफ फुट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर on the ellipse at any tangent to it. See, it's like this कि
टेंजेंट पे परपेंडिकुलर के फुट का लोकस निकालना है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मॉडल में भी है। इस पॉइंट का लोकस निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। तो डिपेंड कैसे करते हैं, एक तरीका तो ये है कि इसको अपने पहले तो x1 y1 लेंगे, इसको ये 0,0 है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया आपने, जैसे इन टर्म्स ऑफ x1 y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू एलिप्स, राइट। इस x पॉइंट है हमारे पास, ये x1 y1, और स्लोप इसका तो पता है y1/x1 है, इसका स्लोप है -x1/y1। तो आगे y माइनस y1 पॉइंट है, स्लोप है -x1/y1 टेंजेंट का। ये क्वेश्चन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनता है y1 प्लस x1 इक्वल्स टू x1² प्लस y1²। अब ये काम ये कर सकते हैं कि हम, अगर ये टेंजेंट टू इलिप्स है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, a² m² प्लस b², यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। जो ए बी और एम है रिप्लेस कर दिया, सॉरी ए और बी तो इलिप्स का है, a² 6 है और b² a² 6 है और b² 2 है, ये तो यहाँ रिप्लेस करके, और यहाँ से हमारा आ ही जाएगा। इसको ऐसे लिख लो आप, y इक्वल्स टू इधर शिफ्ट करके -x1/y1 इंटू एक्स प्लस x1² प्लस y1² डिवाइड बाय y1, ये m आ गया, ये c है, x1² प्लस y1² बाय y1 का स्क्वायर c² इक्वल्स टू a² 6 m² इज x1² बाय y1² प्लस b² इज 4। यहाँ से आंसर आ गया। या अब ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो आई गई है आपके पास, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x1² प्लस y1², और टेंजेंट की क्वेश्चन तो ये होती है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1। सो दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो कोइंसिडेंट होना चाहिए। कैसे, इसको नीचे लिख लेते हैं लाके, x ऊपर की जगह नीचे लिख लिया x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x1²। अब कोइंसिडेंट करने के लिए कॉस कोफिशिएंट की रेशियो सेम होनी चाहिए, cos थीटा बाय a डिवाइड बाय x1 इक्वल्स टू sin थीटा बाय b डिवाइड बाय y1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय x1² प्लस y1²। यहाँ sin थीटा cos थीटा आ गया, स्क्वायर करके ये भी नो दैट sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से sin cos² थीटा आ रहा है, ax1 डिवाइड बाय x1² प्लस y1² का स्क्वायर sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये cos sin² थीटा क्या है, by1 ओवर x1² प्लस y1² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा, आ ही रहा है इनफैक्ट, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन कर लिए, या a² प्लस b² y² इक्वल्स टू x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो कोनिक का तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये वो इजी क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो दिस इज बेस्ड ऑन पैराबोला, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ अ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास, ऐसी लाइन का स्लोप जो दोनों को टच कर रही है पैराबोला को, तो कॉमन टेंजेंट की बात करनी है, स्लोप ऑफ द कॉमन टेंजेंट की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, y² इक्वल टू 4x पे टेंजेंट लिखा हमने, ऐसे ही करते हैं हम, a1 है तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी, स्लोप m का टेंजेंट ले लिया, a1/m, ये टेंजेंट है, और ये इस लाइन को भी टच करना चाहिए। कंडीशनल टेंजेंसी लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कंडीशनल टेंजेंसी नहीं याद किया वो आपने, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, डिफरेंट है, इसकी एक्सिस सिमेट्री ऐसे है, तो दोनों को सॉल्व कर लो, स्मॉल करके दोनों को -32 y को रिप्लेस करेंगे mx प्लस 1/m। तो ये जो क्वाड्रेटिक आई है, इसके रूट्स इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए, d इक्वल टू 0, बिकॉज ये जो टेंजेंट है और कर्व है वो तो एक ही पॉइंट पे टच करने चाहिए ना, तो दोनों का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो इक्वल रूट्स होने चाहिए, d इक्वल टू 0। तो आ गया m², यहाँ से m²x प्लस 1, यहाँ -32 इक्वल्स टू mx², तो आ रहा है mx² प्लस 32 m²x प्लस 32 इक्वल टू 0। देखिए तो क्वेश्चन लिखिए, अब d इक्वल टू 0 है इसका, 32² m टू द पावर 4 b² -4ac 4 इंटू m इंटू 32 इक्वल टू 0। इसमें से 32 कॉमन लिया, फिर आपने 32 ये 30 इंटू 4 कॉमन ले लिया, 8 बच जाएगा, 8m³ -1 इक्वल टू 0, m इक्वल्स टू हाफ, m हाफ आ गया। नहीं तो आइडिया कॉन्सेप्ट पता है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा करने के अंदर, पहले किया हुआ आपने तो,
हाँ दिस इज वेरी, तो रिजल्ट ही हमारा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, गलत सिंबल है, ऐसे सिंबल होना चाहिए था ये। तो ये तो हमारा रिजल्ट ही है, यू नो, ये तो हमने एग्जैक्ट रिजल्ट ही है, ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर है ये। लेमडा इक्वल टू 1 है, सीधा रिजल्ट पता ही है हमें, रिजल्ट कितना याद रखना है। लेकिन अगर डेरिवेशन लेना है तो वही फॉर्मूला लगाना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी डॉटेड विद बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये लिखा है इसको। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, बी क्रॉस सी का ए से डॉट लिया, बी सी ए ऑफ इंटू सी वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसका डॉट इससे मल्टीप्लाई विद सी माइनस इसका डॉट इससे, वो जीरो हो गया, मल्टीप्लाई विद ए, ये जीरो ही हो गया। तो इसमें मैं बी सी ए को आगे ले गया, कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया इसको मैंने, अंदर बचता है ए क्रॉस बी डॉट सी, राइट, ए क्रॉस बी डॉट सी, वो भी ए बी सी हो गया, ये भी ए बी सी, ये बी सी, ये दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में, देखो ए बी सी बी सी, ये सेम साइक्लिक ऑर्डर है, तो दोनों इक्वल है बेसिकली, ए बी सी का स्क्वायर हो गया लैम्डा 1। तो ये रिजल्ट ही याद होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं रिजल्ट याद तो इस तरह से, दिस इज द वे वी डू इट, वी अप्लाई स्केलर प्रोडक्ट फॉर्मूला, बट यहाँ पे हमने देखा वी कैन अप्लाई वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्मूला बिकॉज 3 क्रॉस मिल गए, तो इसको सिंगल मान के फॉर्मूला लगा दिया, दिस डॉटेड विद दिस इन माइनस है, दिस डॉटेड विद सी माइनस दिस डॉटेड विद ए माइनस ए, दिस डॉटेड विद ए इंटू सी माइनस दिस डॉटेड विद सी माइनस, ये फॉर्मूला जो है हमारा वो लगाया आगे। तो इसमें कई क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन इजी भी है लाइन से क्वेश्चन। तो वी आर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D। तो अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन तो फंडामेंटल है, अगला वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन, अब एक लाइन की इमेज प्लेन में निकालनी है, तो लाइन की इमेज, लाइन ऐसे भी हो सकती है, इमेज निकाल रहे हो प्लेन में ऐसे, राइट, लेकिन इस केस में लाइन ऐसे और इमेज ऐसे निकाल रहे हैं बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन इन दिस क्वेश्चन। तो एक बार लेसन एक चेक कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों का अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। यहाँ अप्रोच में अब मतलब कुछ डिफरेंट फॉलो करते और यहाँ हम डिफरेंट फॉलो करते, तो राइट, तो यहाँ पे बस हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए होता हमें, राइट, इमेज निकालने के। सब ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इससे अपना हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले तुमने देखा कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, वो कैसे देखा हमने, कि देखा कि परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इट मींस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। कैसे, ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन के और ये डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, दोनों में कंडीशन लगा ये आ रही है, देखो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ रही है। कैसे, 3 इंटू टू, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 इंटू माइनस वन, सेकेंड को सेकेंड से किया, और -5 इंटू 1 किया, तो ये 0 बन गया, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लाइन के लाइन और इसका जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, तो लाइन पैरेलल टू प्लेन हो गया। अब लाइन पैरेलल टू प्लेन है तो उसके मतलब देखो स्लोप तो सेम ही रहेगा लाइन का, फिर लाइन पैरेलल टू प्लेन है तो उसकी इमेज ही पैरेलल टू प्लेन होगी। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 1 माइनस 5 है, वो 3 1 माइनस 5 इसके रहेंगे, वो पैरेलल लाइंस हैं। तो एक जो पॉइंट है इसके ऊपर, वो हमें लाइन पे पता है 1 3 5 4, तो उस पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं इस प्लेन के अंदर, और प्लेन ये यूज करेंगे कॉन्सेप्ट हमें। ये प्लेन की इक्वेशन है, एक प्लेन की, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 है, या तो ये हमने बताया था, बिल्कुल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इमेज को मान लिया हमने, पॉइंट को एक्स वाई जेड, ये इमेज मान लिया, सो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स नॉट, इसमें से ये माइनस किया, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 इक्वल्स टू इमेज का y कोऑर्डिनेट माइनस जो ओरिजिनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y -1, इमेज का z कोऑर्डिनेट -3, z कोऑर्डिनेट -4, z कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ z1 इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा -2। अब जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर दो गिवन पॉइंट, 2 इंटू 1 -3 प्लस 4 प्लस 3 मॉड डिवाइड बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट, रूट नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स है, 3 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर। तो प्लेन के जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, प्लेन की इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम यहाँ करना है। ये रिजल्ट है जो लास्ट टाइम बताया था आपको, वही है ये, कि पॉइंट की इमेज निकालनी है प्लेन के अंदर, ये ऐसे यूज करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल, 6 माइनस 12 डिवाइड बाय 9 10 11। आई होप ठीक है, मिस्टेक नहीं करी। 4 जब चेक कर लेते हैं, माइनस 12 बाय ये आंसर आ गया तो ठीक है। इसको फिर ऐसे ही एक्स माइनस 1/2 से इक्वेट किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है। एक्स आ गया -22 -24/11 प्लस 1 माइनस एलसीएम लिया 11 से तो -13/11। नहीं, ये तो कोई पॉइंट तो ऐसा कोई आ नहीं रहा, कुछ मिस्टेक करी है। 10 की क्वेश्चन है 2x - y + z + 3। कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के 1 3 4। 1 3 4 तो ठीक है। थ्री 1 -5। हो सकता है इसमें कुछ गलत टाइप हो गया। अच्छा, स्क्वायर का सम तो नहीं गलत किया, 4 प्लस, हाँ ये गलत कर दिया ना, 4 था ये, तभी गड़बड़ हो रही है। 3 का स्क्वायर तो ये 6 बन रहा था, -2। तो x -1/2 इक्वल्स टू -2, -4 + 1x -3 आ रहा है। तो -3 तो देखो ये एक्स क्वाड्रेंट माइनस, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो ये 3 1 -5 होना चाहिए। 3 1 -5 ये तो सेम ही है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों में से कोई आंसर है। तो y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं फिर क्या आएगा, y -3/-1 तो इक्वल्स टू 2 हो गया वो, y इक्वल्स टू 5। ये भी सेम है, z देखना पड़ेगा बस अब, ये 2 या -2, z कोऑर्डिनेट आ रहा है z -4/1 इक्वल्स टू -2, तो z इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो Z2 में ये वाला पॉइंट हो गया, ये चॉइस मैच कर गए। तो फॉर्मूला लगाना था, मिस्टेक कर दी, इसलिए मैंने वो थ्रू 2 स्क्वायर था, नीचे 3 स्क्वायर कर दिया था। अदरवाइज तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन का भी सेम फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन का भी सेम स्ट्रक्चर है, तो इससे टाइम सेव हो जाता है फॉर्मूले से। हाँ, अगर लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी तो मैं क्या करेंगे, तो इस पे लाइन पे पॉइंट तो पता होगा, उसकी इमेज निकाल लेंगे, जैसे सेम ये पॉइंट आ जाएगा इस पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन एंड लाइन निकाल लेंगे, उससे दो दो लाइन इक्वेशन बन जाएगी लाइन की, राइट। तो लाइन पे इस बार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक से काम नहीं होगा। तो एक लाइन पे जो एक पॉइंट है उसकी इमेज ले ली यूजिंग दिस फॉर्मूला, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट आ गया प्लेन के साथ, तो 2 पॉइंट आएंगे, उससे इक्वेशन बना लेंगे लाइन की, वो इमेज ऑफ द लाइन होगी। लेकिन यहाँ पे इजी इसलिए पड़ गया थोड़ा सा कि लाइन पैरेलल थी प्लेन के, तो एक ही पॉइंट निकालने से काम हो गया हमारा। सो दिस इज थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इस सेंस में कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, फंडामेंटल डिफिकल्ट मैंने मार्क किया, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि एल प्लस एम प्लस एन, और दूसरा है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो इसी में ही है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों के। तो इसी से हमें एल वन की सारी, इसी से हमें L1 L2 निकालना है, M1 M2 M निकालना है, और N1 N2 निकालना है।
तीनों सी से निकालने हैं, 6 के 6 से निकालने हैं। तो पहले तो ये कंडीशन हमारी आएगी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी तो 1 होगा, ये कंडीशन है। तो वहां से देखो ये तो एल तो सीधा आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, सो 2l स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, दो वैल्यूज एल की आ गई। फिर साथ में अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको हमने, कि इसको मैंने ऐसे लिखा एल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम प्लस एन, राइट, क्योंकि एम प्लस यहाँ से देखो इससे पता चल रहा है, स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और ये कैंसिल हो गया इससे, तो आ गया mn इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन ये आ गई, एक एल इन तीनों का सम 0 है, एक m और n का प्रोडक्ट 0 है। तो इससे अब हम सारे केसेस लिख लेते हैं। ऐसे मैंने पहले लिया L1/√2 है, L1/√2 लिया, तो अब दो केस बनते हैं, इनमें से एक 0 होगा। पहले m को 0 ले लिया, Lmn ये 0 हो गया, तो n क्या आएगा, इन तीनों का सम 0 है तो ये -1/√2 आ जाएगा, तीनों का सम 0 होना है। फिर इसको सेम रखा मैंने, इस बार n को 0 लिया, तो ये -1/√2 हो जाएगा। बात तो वही है, दो केस ही आ गया। तीसरा केस है, अब मैंने l को -1/√2 ले लिया, इसको 0 लिया, तो ये 1/√2 हो गया। इसको सेम -1/√2 लिया, लेकिन इसको 0 लिया, तो ये 1/√2 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट इनका तीनों सम 0 है इसलिए। तो ये चार केस बन जाते हैं। तो हमने यू नो अब ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ये सेकंड लाइन के हैं, लाइन L1 के हैं, लाइन L2 के, सारे केस लेने पड़ेंगे, 4C2 केसेस बेसिकली। तो ये सिमेट्री है तो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सिमेट्रिकल है ना हमारा एंगल निकालने का, cos थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या दोनों के बीच में, ये वही है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 L1 L2 या M1 M2 N1 N2 डिवाइड बाय रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ये हमारा cos थीटा वाला फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में कैसे भी ऐसे देख लिया आपने। तो इसमें L1 L2 में सिमेट्री है, तो इसमें कोई भी यू नो तो केसेस देखते हैं, इसमें कुछ केसेस सेम ही बन जाएंगे। ये लिया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, L1 L2 इज हाफ, ये 0 ये 0, डिवाइड बाय स्क्वायर्स के स्क्वायर्स का सम, हाफ प्लस हाफ 1/4, सॉरी हाफ प्लस हाफ 1, तो 1 ही होगा, स्क्वायर्स का सम 1 ही बन जाएगा, वही 1 बन गया, तो cos थीटा हाफ आ गया, तो एंगल तो π/3 आ गया, तो एंगल मैच कर गया। तो एक एक आंसर मैच कर गया, तो फिर करने की मोर देन वन तो है नहीं है, काम हो गया। नहीं तो इन दोनों से भी, इन दोनों को लिए तब भी हाफ है cos थीटा, इन दोनों को लेके भी हाफ आता है, इन दोनों को लेके भी हाफ आता है, कि ये 0 0 हो रहा है ना, तो इनको लेके भी हाफ आ रहा है, तो इसको लेंगे तो माइनस हाफ आ रहा है, तो cos थीटा माइनस हाफ, तो यू नो तो 120 डिग्री तो अपोजिट एंगल आ गया, तो वो 120 आ गया उनके बीच में एंगल, तो वो 2π/3 वो है नहीं चॉइस, एक्यूट एंगल ही गिवन है, तो दैट्स व्हाई। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन quadratic, now we move to algebra। तो ये तो मतलब फंडामेंटल डिफिकल्ट थोड़ा मैंने लिख दिया, कि कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक ना हो, उसे है भी नहीं है, फंडामेंटल इजी है। और डिफिकल्ट लिखा क्यों लिखा है बताता हूँ अभी आपको मैं। तो पहले मैंने देखा एपी के अंदर है 2q इक्वल्स टू पी प्लस आर, इक्वेशन लिख ली। फिर हमें ये कंडीशन गिवन है कि इसमें से अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दिया, -q/p डिवाइड बाय r/p, तो आ गया -q/r इक्वल्स टू 4, -q इक्वल्स टू 4r, ये कंडीशन आ रही है। अब ये दोनों चीजें हमें पता है, हमें मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है, विच इज √d/a होता है, रूट डिस्क्रिमिनेंट q² -4pr डिवाइड बाय a इज p। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, क्यू पी आर तीनों में से कोई भी नहीं आना चाहिए। तो अब ये जो अगला स्टेप था ना, वो थोड़ा सा ट्रिक नहीं है, मतलब वो आप गलती कर सकते हो कि 3 वेरिएबल को कैसे हैंडल करें, तीनों कैसे। अब यहाँ पे एक बेस्ट तरीका ये था कि p तो है ही डिनोमिनेटर में, तो अगर q और r दोनों को p की फॉर्म में निकालो, कि डिग्री सेम है, देखो कैंसिल हो जाएगा, वो q को हमने, यहाँ देखो यहाँ मैंने 2q इक्वल्स टू p प्लस r है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो q सॉल्व हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0,
तो 8R 9R प्लस P, तो R आ गया माइनस P/9, R इज माइनस P/9, और ये रिलेशनशिप है ही है इसमें, और Q क्या, -4 टाइम्स R, तो Q क्या होगा, -4P/9, तो दोनों आ गए, रिप्लेस कर दो, P की फॉर्म में निकाल लिए दोनों। √Q², Q² मतलब 16/81 P², और फिर ये तो प्लस हो जाएगा 4P टाइम्स R, R इज P/9, माइनस तो यहाँ प्लस कर दिया, P/9, 9 सॉरी, कॉमन लिया हमने, 4/9 को कॉमन ले लिया, तो बाहर आ गया 2/3 आ गया, यहाँ से 4/9 गया तो 4/9 बच भी गया, P² यहाँ भी, P² भी बाहर जाके P हो गया, 4/9 ये +1 डिवाइड बाय, नीचे है P से P कैंसिल, आ गया 2/3 √13/3, 2/9 √13, चेक कर लें आंसर है कोई ऐसा, 2/9 √13, यस है आंसर, सी चॉइस है। तो अब देखो ये जो मैंने इसी को थोड़ा बस यहाँ पे जो मैनिपुलेट किया है ना, इसलिए मैंने इसको फंडामेंटली डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि हमें ये यहाँ पे, अब ये जो पी कैंसिल करना था आपको, ये सही, ये तरीका सही था पी कैंसिल करने के लिए, इसको भी पी की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी पी की फॉर्म में, पी कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये आई थिंक बेटर अप्रोच थी। अगर आप नहीं करते इसको भी, पी को भी, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में लाते नहीं, तो यहाँ पे वेरिएबल में ही घूमते रहते आप। दैट वाज द आइडिया ऑफ कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन। Now this is question based on complex numbers. If z is a complex number such that, तो easy question है, mod z greater than equals to 2, तो z कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के आउटसाइड, mod z greater than equals to रेडियस ऑफ, इसके बाहर है, ये सरकमफ्रेंस पे या बाहर है, ये। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है z माइनस हाफ, z प्लस हाफ के मॉड की, ये पॉइंट माइनस हाफ लेंगे, z कहीं पे लिया आपने, सपोज z यहाँ लिया या सरकमफ्रेंस पे ले लिया, पहले सरकमफ्रेंस पे ले लेते हैं, तो ये वेक्टर हो गया z प्लस हाफ, z माइनस माइनस हाफ, ये देखो ना, ये z है, ये हाफ है, ये, तो z में से माइनस हाफ को माइनस किया, लेंथ निकालना है, अब इस लेंथ को आपने मिनिमाइज करना है, ये लेंथ मिनिमम कब होगी, और z को बाहर ले लेंगे तो वो से ज्यादा हो रही है, तो z कहीं भी हो सकता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और आउटसाइड, तो ये जो वेक्टर की लेंथ है, z को जो माइनस हाफ से ज्वाइन कर रही है लेंथ, इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम देखो, ये तो सब, ये तो बढ़नी शुरू होगी, देखो आप, ये, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, फाइन स्पेशन दिख रहा है कि जो डायमीटर के लॉन्ग है वो मिनिमम होगा, और ये वाला पॉइंट ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, रेडियस 2 है इसका, ये हाफ है, तो ये 3/2 होगा ना, डायग्राम ठीक नहीं बना, मतलब अदरवाइज तो ये लेंथ 2 है, और ये हाफ था, यहाँ पे माइनस हाफ था सॉरी, तो ये लेंथ लीस्ट है, ये जो z की वैल्यू है वो सबसे नियरेस्ट है माइनस हाफ के, और लेंथ 3/2 होगी इसकी, तो लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 है, 3/2 आंसर है इसलिए, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये तो बाई इंस्पेक्शन सर्कल से ड्रॉप आयरन प्लेन पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन है, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग जीपी है, राइट, इफ द मिडिल टर्म ऑफ जीपी, इस तरह के बाकी दोनों साल भी इस तरह क्वेश्चन आया, मिडिल टर्म ऑफ जीपी, अज्यूम कर लिया हमने जीपी को b/r b/r, अब मिडिल टर्म जो है जीपी की है, इस डबल टू बी कर दिया, देन द न्यू नंबर्स फॉर्म इन एपी, तो ये मिडिल टर्म, अब ये न्यू नंबर्स हो गए, b/r 2b/r, ये एपी है इस बार, तो 4b इक्वल टू b/r प्लस br, फॉर्मूला, इन दोनों का सम इसके डबल के इक्वल होना चाहिए, ये b कैंसिल हो गया, r² प्लस 1 इक्वल्स टू 4r, r² माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो सॉल्व कर लिया r को हमने, 4 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस √3 आंसर है, बिकॉज इंक्रीजिंग जीपी है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा कॉमन रेशियो होनी चाहिए, 2 प्लस √3 हो गया, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये क्या है, फंडामेंटल डिफिकल्ट मैंने इसको दिया है, क्योंकि वैसे तो दिख रहा है ये इजी सीरीज है, यहाँ देखो 10⁻⁹, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11⁻1 10⁻8, प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 11 का स्क्वायर और 10⁻7, तो कॉमन रेशियो तो इसमें ये तो ये एपी है 1 to 3, और ये एजी है,
ये सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे? ये 10⁻9 है, ये फर्स्ट टर्म बी है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से। आर क्या? आर बन रहा है, ये पावर कम होनी चाहिए, 11/10 है आर। इसको 11/10 से मल्टीप्लाई किया, पावर कम होगी, 11 मल्टीप्लाई हो गया। तभी तो ऐसे हुआ है कि 10⁻9, राइट। अब ये अगली टर्म हो गई 10⁻8 और साथ में 11 मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि बी आ रही है, देखो बी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा। सेम वे फिर बी आर स्क्वायर है, 11/10 का स्क्वायर है और 10⁻9 था, तो क्या हो गया 11 स्क्वायर 10⁻7। तो ये बस एजी सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजी सीरीज है ये है। इसमें A1 कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन रेशो 1, सॉरी जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशो वो 11/10 है। ये चारों चीजें हैं। तो एजी सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, बेटर फॉर्मूला याद, मतलब इतना आसान नहीं है याद रखना, लेकिन अगर एग्जाम से पहले याद करेंगे तो हो जाएगा। AB/1 - मुझे भी जितना याद नहीं है, प्लस ऐसे होगा शायद DBR 1 - R⁻n-1 over 1 - R whole square minus A+n-1 D into BR⁻n/1 - R, something like this, but might not be correct. सम ऑफ एंटम्स ऑफ एजी सीरीज रिप्लेस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाने में भी टाइम लग जाता है। आपने वो करना है वो कर दो, इसको एस मान के फिर कॉमन रेशियो 11/10 से मल्टीप्लाई करा, फिर शिफ्ट करके सेपरेट कर दिया, वैसे करना है वैसे कर लो, बट टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, एजी सीरीज है तो। नहीं तो फंडामेंटल डिफिकल्ट मैंने इसको मार्क करा है। I'll be back in 5 minutes, so short break, and then we'll solve the rest of the questions. 9 more to go.
So yeah, we'll resume the class. So this is a question based on binomial theorem, and there are like two questions based on binomial, and I would say both of them are, you know, this one, for example, is a little tricky, and the other one is difficult to find answer. So let's see how to proceed this. This one is so X is a set consisting of these numbers, 4 to the power n minus 3 and minus 1, and Y is a set consisting of these numbers. तो एक तरीका तो है इसको बाय इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो उससे जल्दी हो जाएगा अगर आप मैथमेटिकली ना जाए कि किस तरह के नंबर है एक्स में, लिखना शुरू कर दें। अगर इफ आई रिप्लेस ए नेचुरल नंबर है, इनको 1 रिप्लेस किया तो इट इज 0, राइट। इनको 1 रिप्लेस किया तो नहीं, सॉरी 1 आ रहा है, इनको नहीं, इनको 1 किया तो 0 आ रहा है, यस, राइट। इनको 2 किया तो यू नो ये इनको 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 माइनस 1, 16 माइनस 7 इज 9। फिर इनको 3 रिप्लेस किया तो 464 माइनस 19, तो आ गया 45। इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, राइट। और y को देखेंगे, अगर y तो बहुत क्लियर है कि इनको 1 डालेंगे तो 0 आ रहा है, फिर 2 डालेंगे, 9 के मल्टीपल हैं, 18, 27, राइट। 9 के मल्टीपल हैं, 27, 36, 45, ऐसे चल रहा है। अब दोनों का अगर हमें यूनियन करना है तो दिख ही रहा है थोड़ा कि ये 9 के मल्टीपल है, लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है, थोड़े मल्टीपल हैं। ये 9 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, ये 9 के मल्टीपल ही आ रहे हैं, एक और निकाल के देख लो। तो यूनियन किया हमने, तो x यूनियन y क्या हो गया, x यूनियन y तो x y के इक्वल हो गया, सही आंसर है। तो ये तो बहुत ऐसे इजी था, ऐसे करने लग जाता है कि यार मतलब मैथमेटिकली छोड़ो, जस्ट रिप्लेस करके फिर देख लेंगे, तो एकदम समझ आ रहा है कि यूनियन करने के बाद जो सेट आ रहा है वो यूनियन सेट क्या आ रहा है, वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आ रहा है, y आ रहा है। ये अगर उससे आप करते कि मैथमेटिकली करते हैं तो फिर बाइनोमियल और आइडिया लगाना पड़ेगा कि इस ये तो दिख रहा है 9 के मल्टीपल है, इसमें देखना है किस तरह के एलिमेंट है, क्या इनके डिफरेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, पावर है और ये ऐसे है, तो हमने 4 टू द पावर n को लिखा 3 प्लस 1, 1 प्लस 3। अब ये टू द पावर n, तो मैं इसको ये जो मैंने ट्रिकी बोला है वो मतलब ट्रिकी नहीं बोलूंगा मैं, अगर ऐसे रिप्लेस करके, अगर खैर चलो ये भी आइडिया था कि रिप्लेस करके देख लें। तो -3 एंड -1 है। इसके बाद हमने यहाँ बाइनोमियल का आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, NC0 प्लस NC1 इंटू 3 plus NC2 into 3 square plus NC3 into 3 cube goes on, then फिर -3 and -1, ये -3 and -1 तो इससे कैंसिल हो गया, देखो ये बच गया। फिर आगे फिर 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो रह गया अंदर NC2 प्लस NC3 into 3 प्लस NC4 into 3 स्क्वायर गोज ऑन, ये तो ये भी 9 के मल्टीपल है, लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है 9 के, तो 9 के मल्टीपल तो आ ही रहे हैं। बट अगर आप इनको रिप्लेस करके देख लो, इनको आप 2 रिप्लेस करोगे, कुछ भी इनको रिप्लेस करेंगे अगर आप, तो मिनिमम तो अब 2 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ तो इनको 2 रिप्लेस करेंगे तो ये से तो कहाँ, या इनको 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से कुछ मतलब वहां से देख लो। लेकिन जब भी बाइनोमियल मीनिंगलेस आता है तो वो मतलब यहाँ से देख, वो रिप्लेस करना तो यहाँ से देख लिया हमने, रिप्लेस करके यहाँ क्यों रिप्लेस करेंगे, यहाँ करके देख लेंगे। तो समझ आ रहा है कि यहाँ रिप्लेस ही कर लिया तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी बेसिकली, तो इतना कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से ही इजी हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे करके 9 के मल्टीपल तो आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आंसर y है, x नहीं है आंसर। ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, तो x भी आंसर है, y भी आंसर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल नहीं है 9 के, तो दैट वे। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाई आई मार्क दिस एज फंडामेंटल डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल, बट आंसर निकालने में टाइम लग सकता है। अब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे एक्स क्यूब देखना कैसे आता है। तो अब ये देखो, तो 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, इस सीरीज को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लूँ मैं, 18c0 माइनस 18c1 इंटू 2x प्लस 18c2 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 18c3 इंटू 2x का क्यूब प्लस 18c4 2x टू द पावर 4 गोज ऑन।
इसमें से अब मुझे एक्स क्यूब देखना है। एक्स क्यूब कब आएगा? जब 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18c3 इंटू 8, और फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, राइट, तो आएगा a टाइम्स 18c2 इंटू 4, राइट, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर को एक्स की टर्म से यहाँ से माइनस, या सॉरी एक्स स्क्वायर को एक्स की टर्म से, या b टाइम्स 18c1 इंटू 2, ये है लिखा है जीरो है ये भी जीरो है। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 भी जीरो है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कैसे आएगा? जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 वाली टर्म से, इट्स 18c4 इंटू 16 प्लस a टाइम्स एक्स क्यूब की टर्म से -18c3 इंटू 8, राइट, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 18c टू b टाइम्स 18c2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है। अब इनको आपस में सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो कोविशेंट ऑफ मतलब ए और बी, तो वो अब थोड़ा कैलकुलेशन है, सारा लिखना कि 18c3 और ये वो, दैट वाज अ प्रॉब्लम, राइट। वो तो कर लेना, अब इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है। कोविशेंट ऑफ ए सेम करके सब्ट्रैक्ट करना है तो बी आएगा, या बी कोविशेंट सेम करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। -18 इंटू 17 इंटू 16 बस 6 ऐसे करके ना, तो टाइम सॉल्व करने में टाइम लगेगा इसके अंदर। या ये ऐसे कर लो आप, नहीं या so this is the two questions based on matrices, and this one on matrices, one on determinant. This was easy question, fundamentally easy। अगर आपने पढ़ा है फंडामेंटल तो कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ पे गिवन है a इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है, इज सेम एज a ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमें गिवन है प्रॉपर्टी। और एक और हमें बी मैट्रिक्स गिवन है विच इज a इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज है, और हमें निकालना है कि बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है भाई, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बी इंटू बी ट्रांसपोज निकालना है, बी इंटू बी को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी के ट्रांसपोज से, मतलब ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये देखो बी को रिप्लेस कर दिया और यहाँ बी को रिप्लेस कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज है, अब प्रॉपर्टी लगा दी। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होती है प्रॉपर्टी। ये मैंने पहले पार्ट को सेम रखा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, इसमें प्रॉपर्टी लगाई है। तो इसका ट्रांसपोज पहले लेते हैं, इसका बाद में लेते हैं, रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, और फिर आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसे आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो काम किया मैंने, इसके बाद इन दोनों को रिवर्स कर दिया प्रॉपर्टी यूज करके, जो गिवन प्रॉपर्टी, इनको रिवर्स करा तो आ गया ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। और यहाँ मैंने क्या किया, उल्टा ये कर सकते हैं, इनवर्स ट्रांसपोज को अंदर कर दिया, इनवर्स को बाहर कर दिया, कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो ये आने के बाद ये तो वन हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, राइट। एक मैट्रिक्स है, उसका इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी होता है। मैट्रिक्स और इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन इज आइडेंटिटी, फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा है आपने, कोई बिग डील है ही नहीं है कि हमने बी को लिखा, बी ट्रांसपोज को लिखा, बी ट्रांसपोज को जब लिखा हमने तो ट्रांसपोज को दोनों मैट्रिक्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते हैं तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, वो आगे चला गया, राइट, वो आगे चला गया, और ये पीछे आ गया ऐसे। इसके बाद ये प्रॉपर्टी गिवन है, ये दिख रहा है कि हमें कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है सारा ये। तो इसको मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इस एक बिकॉज गिवन है हमें कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं, गिवन है प्रॉपर्टी हमारी ये। तो ए आगे, इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले आया, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। बस ये देखना है इसमें ट्रांसपोज को अंदर लाके इनवर्स को ऊपर करना है। तो ये भी ये कैसे हो गया कि एक एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, और उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये भी। ये करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था एग्जाम में, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा सकते एग्जाम में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि ये डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है वाला क्वेश्चन। हमें गिवन है एफ एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। इसमें यूज किया है एफ वन विच इज अल्फा प्लस बीटा, एफ टू विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे है। तो बेसिकली इसको एक्सपैंड कर दें
तो ये 3 को लिखा मैंने 1 + 1 + 1, इसको लिखा 1 + α + β, इसे लिखा 1 + α² + β²। दिस इज 1 + α + β, 1 + α² + β², 1 + α³ + β³। सेम थर्ड रो, 1 + α² + β², 1 + α³ + β³, 1 + α⁴ + β। अगर आप इसको ये करना था, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, ये था आइडिया इसमें। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि या पता हो तो लिख लोगे आप, कि ये सोचना है कि अच्छा ये दो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट सॉरी नॉट मैट्रिक्स, वो इतना दिमाग में आना मुश्किल है। अगर वो आगे दिमाग में तो लिख ही लोगे। ये तरीका होता है इसका, ये तीन ये, क्योंकि देखो अगर मेरा यहाँ पे A1 B1 C1 है और यहाँ पे है A2 B2 C2, जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है, तो ये जो एलिमेंट होता है वो होता है A1 A2 करस्पॉन्डिंग प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये है राइट। और फिर ये एलिमेंट अगर ऐसे है, एक मिनट, तो इसको ऐसे ले रहे तो अच्छा रहता। एक मिनट, दोबारा समझने के लिए तो दोबारा लिख लेते हैं। A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ये A3 B3 C3 है। ये एलिमेंट है सपोज कि L1 L2 L1 M1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 है। तो ये जो एलिमेंट है वो है A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1 होता है। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आता है। सेकंड एलिमेंट कैसे आता है, फर्स्ट रो को फिक्स रखना है, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N3 ऐसे है। तो ये पैटर्न देखना है हमें। हमें इन दोनों में अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि इसको मैंने कैसे लिखना है। ये इसके दो एलिमेंट होंगे जो कि मतलब कि 1 है तो 1 × 1 ही होगा, ये भी 1 × 1 है, ये 1 × 1 है। इनमें जो कॉमन पार्ट है, इसमें उनमें कॉमन पार्ट देखना है क्या, इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये 1 + 1 + 1 है, यहाँ है 1 + α + β है, 1 + α² β² है। तो इसमें ये समझना है कि यहाँ पे दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 L1 B1 M1 C1 N1, ये राइट। यहाँ पे ये सेम है, A1 B1 C1 तो सेम है यहाँ भी, A1 B1 C1। बस यहाँ फर्क है कि यहाँ पे L2 आ गया, M2 आ गया, N2 आ गया, L3 M3 N3। तो तीनों एलिमेंट कॉमन है, वहां से हम बाई इंस्पेक्शन निकाल लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। 1 1 1 है तो यहाँ दिख रहा है कि ये भी 1 × 1 ही होगा, ये 1 × 1 है, 1 × 1 है। तो ये तो दिख ही रहा है कि मल्टीप्लाई करके ये तो 1 1 1 ही हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कॉमन भी दिख गया, ये 1 × α 1 × β है। तो जो 1 1 कॉमन आ गया ना, देखो यहाँ भी 1 × 1 प्लस 1 × α², 1 × β²। तो ये पाई इंस्पेक्शन दिख रहा है 1 1 1 है। इसकी पहली रो भी 1 1 1 है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आ गए यहाँ पे। फिर ये है 1 α β, सो दैट 1 × α 1 × 1 इस सम का रहा, तो 1 + α + β आ गया। सेम है, ये है 1 α² β²। सो बाइंग इंस्पेक्शन मैंने ये ऐसे लिख लिया, इस फर्स्ट रो को देख के मैंने बाइंग इंस्पेक्शन ऐसे स्प्लिट कर लिया। फिर अब उल्टा देखेंगे तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे तो इसमें तीनों में कॉमन आ रहा है 1 α और β, तो यहाँ 1 α और β आएगा ऐसे। और ये सेम वे आएगा 1 α² β²। तो बेसिकली इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो इक्वल डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं, देखो दो सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं इसको फैक्टराइज करके, ये है। तो ये क्वेश्चन फिर इसके बाद तो फिनिश हो जाता है, 1 α इसका स्क्वायर हो गया ये। इसको हम डिफरेंस लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, तो 0 0 1 1 -α, बीटा सेम, 1 -α² -β² यहाँ से 1 - α कॉमन लिया तो बाहर जाके 1 माइनस ये स्क्वायर है, 1 -α होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ गया। एंड इनसाइड वी हैव 0 0 1 1 1 बीटा, 1 + बीटा, अल्फा + बीटा
बीटा स्क्वायर। अब इससे एवेल्युएट कर लिया, फर्स्ट रो से एवेल्युएट कर लिया, सही, एक एलिमेंट आएगा 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, बीटा माइनस वन आ रहा है का स्क्वायर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं क्या मिला हमें, मिला 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये तो गिवन ही था, k1 हो गया, k is 1। तो ये इससे ट्रिकी क्वेश्चन कि दैट वी हैव टू फैक्टराइज द डिटरमिनेंट टू यू नो, बाई स्पेशल नहीं सोचना पड़ेगा कि हिडन ट्रायल ये चाहिए नहीं वो, तो वी कैन ट्राई टू फैक्टराइज, और फिर फैक्टराइजेशन करना अपने में अलग चैलेंज है, सोच पाना है कि फैक्टराइज करना है और फिर फैक्टराइज करना। कोई फॉर्मल मेथड नहीं फैक्टराइजेशन का, ये बाई स्पेशल नहीं बना के करते हैं हम इस तरह से, रिवर्स सोच के किसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दैट वे। नाउ दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, इजी क्वेश्चन डेफिनेटली, क्योंकि अब देखो इसमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है 1/6, so बेसिकली प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है 5/6, वी और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/4, ए कॉम्प्लीमेंट इज 1/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/4। अब इन तीनों से हमने क्या किया, चॉइसेस क्या है, ए और बी के बारे में कमेंट करना है, इंडिपेंडेंट है नहीं है, इक्वल इक्वल लाइकली है नहीं है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया हमने यूजिंग दिस फार्मूला, टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये तो ऑब्वियसली कि दिमाग में आ ही रहा होगा इसको देख के कि ये फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी आ जाएगा, चॉइस भी है कि ए और बी इक्वल लाइकली है नहीं है, ए यूनियन बी 5/6 में से माइनस कर दी, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 माइनस कर दी, प्लस कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ हमने 12 एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 9 प्लस 3, सो इट इज 6/12, प्रोबेबिलिटी हाफ आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल नहीं अनइक्वल है, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, दे आर नॉट इक्वल लाइकली। अब इंडिपेंडेंस चेक कर रहे थे कैसे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है कितना है 1/4 है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी इंटू पी बी चेक क्लास क्लास में भी किया था हमने ऐसे कि इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए पी इंटू पी बी को मल्टीप्लाई कर लिया, हाफ को 1/3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 आ रहा है, तो ये तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, मिस्टेक तो नहीं किया, इंडिपेंडेंट आता था शायद, एक मिनट लेट मी चेक द मिस्टेक, मुझे याद रहा इंडिपेंडेंट था। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी 1/4 है, ये ऐड कर दिया, ये 5/6 में ये 3/4 ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी अब भी आएगा इससे। हम्म ठीक है। अच्छा 13 माइनस ये गलती कर दी हम, 4 आना था न्यूमरेटर में, 4/12 1/3, 1/3, तो जब इसको तभी, ये देखो ये मुझे इंडिपेंडेंट याद था आता है, तो 1/4 ही आ रहा है, सो इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी सेम एज पी इंटू पी बी, ये इक्वल हो गए, राइट। सो प्रॉब्लम हमने पी इंटू ऐसे लिख लो, ये हटा दो, पी इंटू पी बी निकाला 1/4 है, और पी ए, ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू पी बी, इट मीन्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और बट वो इक्वल लाइकली नहीं है, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वल लाइकली, सेकंड चॉइस। तो ये तो इजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो टॉपिक है इसमें, वो बिल्कुल जैसे लास्ट टू क्वेश्चन किया सिंपल था, बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर गिवन है, लास्ट टू क्वेश्चन में 20, लास्ट टू क्वेश्चन जो क्लासेस में किया उसमें हाइट नहीं गिवन थी, यहाँ पे डिस्टेंस गिवी, हाइट गिवन है 20, यहाँ बर्ड सिटिंग है, और हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस इज 45 डिग्री, वो सिर्फ देखा है इसको, देन बर्ड इट फ्लाइज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम वो, अच्छा अवे फ्रॉम वो, मतलब ये ओ की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम वो से फ्लाई करना शुरू किया, एंड आफ्टर 1 सेकेंड, ये टाइम 1 सेकेंड फ्लाई करती है, द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ इज रिड्यूस टू, ओ से एलिवेशन 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया, राइट, ये 30 डिग्री एंगल एलिवेशन इस पॉइंट का, बर्ड यहाँ आ गई है,
बर्ड यहाँ भी बर्ड है इनिशियल पोजीशन में, यहाँ से यहाँ फ्लाई कर लिया। सो स्पीड निकालनी है बर्ड की, तो अभी देखो सिंपल टाइम पता है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कितना लगा है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कितना होगा बिल्कुल सेम, हमने ये 20 है हमारा, सेम हाइट है, तो 20 कॉट 30 डिग्रीज माइनस 20 या 45 डिग्री, क्यों ये 20 कॉट 45 है, ये पूरा क्वांटिटी टोट 30 माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 1 कर दिया, सॉरी डिवाइड टाइम कर दिया तो स्पीड आ गया, स्पीड इज 20 √3 माइनस 20, सो 20 √3 माइनस 1, सही चॉइस है। तो ये देख सकते हैं सारे तीन, ये जो भी क्वेश्चन किए तीनों इस टाइप सेम इस तरह के क्वेश्चन थे। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार किया आपने, एफ हमें निकालना है f4x माइनस f6x, फिर f4 क्या हो गया, 1/4 इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसमें से माइनस करना है f6, 1/6 साइन टू द पावर 6 है। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन वाला सिंपल क्वेश्चन होता है वो है, इसको ये पता ही होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, याद ही हो गया होगा ये तो, परफेक्ट स्क्वायर बना के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बना के ये आ जाएगा 1 डाल के ऐसे, और ये आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्यूब बना के एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब ऐसे लिख के उसको -3 ऐसे, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूले से आता है, मैं पता है आपको ये। सो 1/4 माइनस 1/6 यहाँ बना, और ये बना -½ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस, ये प्लस हाफ साइन स्क्वायर एक्स को, ये कैंसिल हो गया ऐसे। सो 12 एलसीएम लेके 3 - 2 1/12 इज आंसर। तो ये तो बहुत दोनों बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस थे। स्टैट का भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला बाकी दो क्लास में भी यही किया था हमने, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का स्क्वायर। ये है मतलब बेसिकली ये ऐसे है कि यहाँ पे सिग्मा एक्स आई नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करके एन से डिवाइड करना है, माइनस मीन का स्क्वायर माइनस करना है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर माइनस ऐसे करके, राइट। तो जरूरत नहीं, इस तरह से लिख लिया आपने, याद कर लिया। तो जितने भी नंबर हैं इनके स्क्वायर्स का सम करके एन से डिवाइड करना है, माइनस मीन के स्क्वायर से माइनस मीन का स्क्वायर करना है। अब फर्स्ट 50 वन नेचुरल नंबर का मीन तो निकाल लेते हैं। मीन क्या होगा कि इवन नंबर का, सॉरी इवन नंबर है 2 4 + 6 + 8 50 टर्म्स का सम करके डिवाइड बाय 50 करना है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा दिया, और n को 50 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आ गया 50 इंटू 51 डिवाइड बाय 50, तो ये आ गया आपका 51। तो ऐसे ही स्क्वायर्स का सम करना है। स्क्वायर्स का सम मतलब मीन ये 2n ले लिया, इवन नंबर है, 2n का स्क्वायर n वेरीज फ्रॉम 1 to 50, ये करना है डिवाइड बाय 50 माइनस 51 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन कर लेना ये, राइट। वो तो 4 बाहर करके 4/50 समीशन एन स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे n को 50 रिप्लेस करना है। फिर कैलकुलेशन आएंगी इसमें, ये सिंप्लीफाई करना है। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये इस बार मैं ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा इसके अंदर, कि इसमें जो दिस इज द ये आपको ये पहले इस पे क्वेश्चन पहले नहीं आया था। दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और अगर ये सिंबल आ जाए तो ये बाय कंडीशनल है। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वीडियो या मेरी वीडियो देख लेना, उसके क्लियर हो जाएगा। कंडीशनल में ये होता है अगर ये P है ये Q है, मतलब इफ देन एल्स है, इफ P देन Q, तो उसमें अगर P अगर ट्रू है
और अगर ये भी ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, कंडीशनल ट्रू हो जाता है। और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो कंडीशनल फॉल्स हो जाता है। और अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इन दोनों केस में भी ट्रू होता है ये, राइट। तो सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है कंडीशनल, जब ये ट्रू और ये फॉल्स है। क्योंकि हम मानते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम इसके पास आते हैं, इफ देन दिस, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है फिर देन के पास आए हम, और फिर इससे पता चलता है कि ये फॉल्स है या करेक्ट है, राइट। इसे मैंने सेम एग्जांपल वहां भी लिया था अपनी वीडियो में, इफ x इक्वल टू 3 है देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये वाला केस है, दोनों ये ट्रू तो ये भी ट्रू, राइट। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, फिर बिल्कुल सब कुछ सही है, एक्स अगर 3 है तो इस साइड पे आए हम, और फिर हमने कहा एक्स स्क्वायर 9 है तो करेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि अगर इफ यहाँ पे मैंने कहा x इक्वल टू 3 है देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है, ये रॉन्ग हो गया, ये ट्रू और ये फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, कि जब एक्स 3 है तो यहाँ पे आओ और फिर देखो एक्स स्क्वायर 12 का रॉन्ग है। तो ये वाला केस है, ये ट्रू है तो हमने ये तो असर्ट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 3, और ये फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो गया। अब बाकी दोनों केस में ट्रू ही आती है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैंने लिखा इफ 3 लेस देन 2 है देन कुछ भी 4 लेस देन 5 में ऐसे लिखूं, या राइट इसमें देखो अब 3 लेस देन 2 है तो गलत हो गया, इरस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है, बेशक 4 लेस देन 5 है या 4, सॉरी ये तो ट्रू है, ये 4 लेस देन 3 है, इट डजंट मैटर यहाँ क्या लिखा है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट वी से 3 लेस देन 2 ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये फॉल्स होते ही ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। हम यहाँ पे आते हैं एल्स में, अच्छा आगे नीचे चलो, ये स्टेटमेंट ट्रू है तब यहाँ जाओ, एल्स यहाँ नीचे जाओ। तो अब द मोमेंट ये फॉल्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ये ट्रू और फॉल्स है, इस साइड पे जाना नहीं, नीचे ही आना है हमें। तो ये स्टेटमेंट में तो गलती नहीं है, लिखने में तो गलती नहीं हुई ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो कभी गलत भी लिखा है तो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो पूरे को हम ट्रू ही मानते हैं, इसको कंडीशन में ट्रू मानते हैं, सब एक केस में फॉल्स मानते हैं जब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, राइट। अब ये होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ which is equivalent to this, if and only if is equivalent to p कंडीशनल q और q कंडीशनल p, ऐसे इधर जाना है इधर से ऐसे जाना है, तो इसका ट्रूथ टेबल ही याद करना, सेम दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए। अगर p मतलब p कंडीशनल q है ये एज वेल एज q कंडीशनल p, तो अगर आप ये p है ये q है 1 0 0 1 1 1 0 0, अगर ये केस लेते हैं चार अब, तो p ये लेते हैं, ये हमने देखा कि पी कंडीशनल क्यू भी समझा है हमने, पी कंडीशनल क्यू क्या होता है कि इस केस में जब ये ट्रू और ये जब ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो इस केस में फॉल्स होता है, सॉरी जब इस केस में ये ट्रू है और यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स होता है, ये जीरो है, बाकी सब में ये वन होता है, राइट। अभी हमने देखा है कि अगर यहाँ ट्रू है फिर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। एफ टी की फॉर्म में लिख लो आप, ट्रूथ टेबल ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, या 1 0 1 0 फॉर्म में लिखना है, ये मतलब है जैसे भी विचेवर यू प्रेफर। और अगर क्यू कंडीशनल पी करना है तो उल्टा क्यू से पी की तरफ करेंगे, तो इस केस में सिर्फ सेम सेम क्यू की तरफ पी करना है तो इस केस में फॉल्स आएगा जीरो, बाकी के सब केस में वन ही आएगा, राइट। अब हमें जब बाय कंडीशनल करते हैं तो वो इफ एन दोनों कॉम्बिनेशन लेना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को, जब दोनों ट्रू है ये इस केस में ट्रू है और इस केस में ट्रू है, बाकी सब में जीरो होगा, जब दोनों वन होंगे तो दोनों दिस दिस एंड दिस होता ही है। बाय कंडीशन मतलब पी 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 कंडीशन ट्रू भी होना चाहिए, क्यू कंडीशन पी भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ये केस में आ गया। अब खाली इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। तो ये कब वन आता है, जब दोनों वन है तब वन आता है, या दोनों जीरो तब वन आता है, अदरवाइज ये फॉल्स आता है। तो मतलब एफ और टी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये पी है ये क्यू है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो बाय कंडीशनल कब ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा, बाकी दोनों केस में फॉल्स होगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल आपने याद करना है बाय कंडीशनल का। तो वो अगर आपको पता है याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी थी, मैंने इजी क्वेश्चन का है इसको, राइट। कैसे अपने इसका ट्रूथ टेबल बना के मैच करना है, किससे मैच कर रहा है, जैसे बाकी लास्ट टू क्वेश्चन भी इस तरह से थे, बाकी हमने प्रॉपर्टी से भी देखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो यहाँ वो नहीं आ पाएगा कि बाय कंडीशनल आ गया, तो हमने उसकी भी, आई एम श्योर कि उसका प्रॉपर्टी हो मुझे याद ना हो उसकी, पर आप आई डोंट नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी की, नेगेटिव को बाय कंडीशन पे ले जाएंगे तो कैसे
कैसे आएगा, आई डोंट नो अबाउट दैट टाइप का, तो पता नहीं है भी नहीं है, लेकिन तो इसको ऐसे कर लिया, नो नो प्रॉब्लम। पी पी लेना है, और पी लिया हमने, वन क्यू लिया, सेम 1 0 0 1 0 0, या पहले कई बार ऐसे रहता है कि इसको फिक्स स्टाइल है, 1 0 1 1 0 0 0 1, कैसे भी ले लिया आपने, फिर नेगेशन ऑफ क्यू लिया, तो 1 0 1 0। अब पी और क्यू का बाय कंडीशनल करना है, तो जब दोनों वन है तो वन हो गया, 1 0 तो 0 हो गया, 0 1 is 0, दोनों 0 है तो फिर वन हुआ, ये है। अब पूरे ये करेंगे, पूरे का नेगेशन करना है, तो 0 1 1 0। अब ये है हमारा है नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यू। अब ये किससे मैच कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यों बताना है। टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू हो जाएं, नहीं सारे ट्रू, टोटोलॉजी इज नॉट अ टोटोलॉजी, इज नॉट अ फॉलिसी, सारे फॉल्स हो जाएं वो भी नहीं है, ये टोटोलॉजी भी नहीं है, फॉलिसी भी नहीं है। अब पी बाय कंडीशनल क्यू से देखो मैच कर रहा है ये देखो, दोनों 0 है तो ये 1 है, दोनों 1 है तो ये 1 है, 1 0 0 1 दोनों केस में ये 0 है, तो ये मैच कर रहा है किससे, पी कंडीशनल, पी बाय कंडीशनल क्यू से मैच कर रहा है, मैच कर गया। अगर इससे मैच नहीं करता तो इससे मैच कर लेता, इसको भी हम लिख लेते साइड में, तो इस मैच कराना है, यू नो इट्स नॉट दैट टाइम कम ज्यादा की बात है, बट जनरली इट्स इजी क्वेश्चन। इफ वी डन वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, अगर एक बार देखें कि कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होने ही चाहिए थे, मतलब ये कौन से नहीं है, कौन से होने चाहिए थे, इफ स्टार्ट काउंटिंग देम, तो ये चलो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दें कि अगर still you get 20 question, this one you should have done because similar question is there, so I say this, I'll count this as one, this is limit direct question 2, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव लेके 3, ये छोड़ देते हैं चलो, रोज थ्योरम पे है, ये भी चलो छोड़ दिया, 3 तब भी आ चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन एरिया निकालना है, कैलकुलेशन है लेकिन तब भी निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। नंबर 5 भी होना चाहिए, कैलकुलेशन इसमें भी आएंगी वैसे तो। 6 is direct solving linear differential equation, the 7th straight line easy question, second straight line is also easy question, 8th सर्कल वाइज क्वेश्चन, 9 सर्कल इजी है, कोनिक के दोनों इजी हैं, तो 11 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। फिर ये क्यूबिक कोनिक का 11 12 हो गया शायद, जो भी वेक्टर का बहुत इजी क्वेश्चन है 13, स्ट्रेट लाइन के भी एक इजी एक नहीं है 14, क्वाड्रेटिक 15 से फंडामेंटल डिफिकल्ट है जो उसको भी छोड़ दिया 14 है, कॉम्प्लेक्स 16, प्रोग्रेशन के दोनों इजी थे बिल्कुल 18, ये कैलकुलेशन नहीं छोड़ दो चलो 17 है, ये भी सेट थ्योरी कंफ्यूज होगा आप छोड़ दो, वैसे सेट का क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने उसको बायनोमियल में डाल दिया था, वैसे देखा है फिर तो ज्यादा चेंज भी नहीं है, बायनोमियल तो है भी नहीं इसमें, सेट है तो ये फिर ज्यादा चेंज है भी नहीं, उल्टा बायनोमियल में लगा दो क्वेश्चन कैसे आ गए, बायनोमियल में है ही नहीं क्वेश्चन, सो इट मींस ज्यादा चेंज भी नहीं है पैटर्न, तो ये छोड़ दिया। मैट्रिसेस का एक इजी है एक नहीं है, तो व्हाट एम ट्राइंग टू से, प्रोबेबिलिटी इजी, ट्रिगोनोमेट्री दोनों इजी, तो अब अगर आप देखेंगे तो अगर और तीनों पेपर में भी आप आइडिया लेंगे ये चीज कि दैट बिटवीन 20 and 25 क्वेश्चंस आर सच दैट where if your performance is average you should be able to do an exam, you at least you know the idea कि 20 भी कर लिया अगर आपने, so so और 20 क्वेश्चंस और थोड़ा सॉल्व भी आपने, मतलब अगर आप 18 में भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम में, इट्स स्टिल इट्स अ डिसेंट स्कोर, तो इवन इफ यू आर यू नो इवन इफ यू आर गेटिंग late 3 digit rank or early 4 digit rank, so still you can do it if you plan your next 2 months properly, at least I'm talking about mathematics, to see the pattern in all these three exams and the kind of questions, ठीक है। और जो कम से कम 20 क्वेश्चन उठाना है या 18 क्वेश्चन उठाना है इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो अपना जैसे कुछ कुछ पैटर्न सा बन ही रहा है, क्या मतलब 3D है, सो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं वो आप डेफिनेटली कर लो, ट्रिगोनोमेट्री के देखें क्वेश्चन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो ऐसे आप हैंड पिक भी कर सकते हैं टॉपिक क्वेश्चन, तो मैं कर ही लूंगा, तो उस तरह से भी मतलब जरूरी नहीं उस टॉपिक का इजी आएगा, बट एटलीस्ट पैटर्न देख के तो अगर 3 साल से टिपिकल क्वेश्चन चीजों के आ रहे हैं। And well, I'll finish this class now. So
So next few weeks I'll be focusing on the mains exam. So if you have anything in mind that I can cover in mains, so please let me know, whether it's the regular mains exam which we take in VMC. Do you want me to discuss that, or I'll preferably I'll would want to cover those 20 test papers at home, which you will be given, because I want you to do them. If you don't do them, you will not be able to practice. Once your board exams are over, you hardly have a time to do things. तो एटलीस्ट एग्जाम के चक्कर में आप घर में पढ़ाई तो कर लेंगे, मतलब टेस्ट के चक्कर में अगर सेल्फ टेस्ट लेना है तो यू कैन एटलीस्ट प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट.